We are very happy to receive you again today. We are joined by more than 12,000 people from the industry on our virtual platform today. We have been running this program for 5 years. More than 15,000 people were associated from the industry for this. We are live across TV channels and social media channels, and reach is across India. The pandemic has impacted the very way we live and conduct our business. I congratulate you and the government for taking quick actions to control the exponential rise in the health crisis. This was followed by the prudent fiscal and policy measures to minimize the economic impact, keeping the future in mind. Sir, your clarion call of Atmanirbharta has enthused the industry with a promise of long-term growth. Our economy is recovering faster than expected, and these green shoots of recovery have helped boost the business sentiment. Sir, we at ASSOCHAM, along with our 4.5 lakh members, continue to stand by your vision of making India a $5 trillion economy. I would now like to call upon the President of ASSOCHAM, Dr. Niranjan Hiranandani, to share his thoughts. Adarniya Pradhan Mantri Ji, Jai Shri Krishna. It is my personal pleasure and as ASSOCHAM President to have you address us today. We don't have a taller leader than you in the country and globally who has stood out for a long-term vision and for converting every challenge into an opportunity. This has been evident in your successful response to the terrible COVID pandemic. Pradhan Mantri Ji, you have an effect not just of transforming government, but even transforming the private sector. One day, I received a call from Gujarat government saying that I had visited GIFT City and was considering setting up a building there. I was informed that the Honorable Prime Minister wanted an international stock exchange set up in 14 months from that day, and he will be ringing the bell on 8th of January 2016 on the occasion of Vibrant Gujarat. I thought to myself, in spite of 35 years of experience in real estate, how will I build this in Gujarat in 14 months? And I haven't even bought the land yet. But the Narendra Modi idea, effect and vision is something to experience. GIFT City and my company worked together and we made sure that the International Exchange of India started trading in Gujarat on the committed date and time, a privilege of mine that the Honorable Prime Minister rang the opening bell. This was a 16-story, 4 lakh square feet building built with international stock exchange standard and set up the fastest stock exchange trading system in the world. This is one experience of a relatively small businessman like me. The change we are going to see in every businessman, every project and government agency in the Atmanirbhar Bharat towards a $5 trillion economy. Your $1 trillion digital dream has inspired my son Darshan to complete Asia's largest Tier 4 data center in Mumbai, inaugurated recently, and your energy policy has made us complete India's first floating LNG terminal in Maharashtra as well. We as a nation have been infected by your mantra of self-belief, the clarion call of Atmanirbhar Bharat. This self-belief is greatly evident in the manufacturing sector, which is all set to leverage on your PLI scheme to make India as a global factory in the next 5 years and achieve the $5 trillion economy. The bullet train construction in Gujarat, now the bullet train of the Indian economy will zoom ahead in 2021. We at ASSOCHAM are already seeing a strong V-shaped recovery, something you have spoken about. And recent green shoots are now leading a multiple rebound to pre-COVID growth rate. And we at ASSOCHAM visualize a 10% positive GDP by the end of 2021. We also see an exemplary example of leadership about to happen. For example, the Pradhan Mantri Awas Yojana, affordable housing for all,
an ambitious target of 2022 to construct 1.1 crore houses. They will be completed ahead of time. While the COVID-19 pandemic may have caused a slowdown, India's inherent resilience and capabilities combined with your vision and stimulus packages announced by you will help India transform into a new Bharat with an accelerated growth path fueled by the national infrastructure pipeline of 111 lakh crores. Finally, Pradhan Mantri ji, service and philanthropy are the ideals of the people of our nation and the greatest pillar of its success and dharma. Countless Indians contribute towards the betterment of Indian society in small ways and large. Here is a man who has contributed his whole life. He has been a custodian and steward of India's largest industrial house. He has been probably the longest and largest philanthropist India has ever seen. It gives me great pride to welcome a person who needs no introduction, Mr. Ratan Tata. It is a matter of great honor for me to witness Mr. Ratan Tata receiving this award at the hands of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji, and a fitting moment to close ASSOCHAM's 100 years in the presence of two of its greatest subjects. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Mr. Niranjan Hiranandani. May I now call upon Chairman of our Centenary Committee, Shri Balkrishan Goenka, to share his thoughts. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जगत के लोकप्रिय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पिछले साल एसोचैम के सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे, और आज ठीक एक साल बाद उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री जी के लिए इंडस्ट्री भी कितनी महत्वपूर्ण है। एसोचैम और उससे जुड़े हुए 4.5 लाख सदस्यों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फ्रेंड्स, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ASSOCHAM kicked off its centenary years last December with a renewed agenda. Then suddenly the world was stuck with the pandemic at a scale we have not experienced in our lifetime. COVID-19 caused immense disruption to healthcare system, macro and microeconomics, and financial system at a global scale. For a nation like us with such a large population, it was a humongous challenge. लेकिन हर संकट को अवसर में बदलना ये हमारे प्रधानमंत्री जी की खासियत है। This time he again demonstrated how a visionary leader can build a new dawn with imagination, insight, and bold decision to serve the nation and its people. When the whole world was still in dilemma on how to deal with the pandemic, our Honorable Prime Minister was amongst the first few world leaders to announce complete lockdown, which played an important role in controlling the spread of COVID-19 in the country. प्रधानमंत्री जी जो हमेशा आम लोगों की भलाई और उनके हित के लिए संघर्ष करते रहे हैं, हर क्रिटिसिज्म के भी उन्होंने इस कठिन समय में लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने की कोशिश की। आज जब हम पिछले 8 महीनों को देखें तो ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी का लिया गया हर निर्णय देश और जनहित में था, और हमारा देश आज पूरे विश्व में एक उदाहरण बन के सामने आया है। सही मायनों में यही तो जान है तो जहान है, इस मोटो के तहत कई सारे कदम लिए गए ताकि आम जनता को हर संभव सहायता मिल पाए। Whether it was creating new capacity for manufacturing PPE and ventilators, creating isolation wards, converting 20,000 railway coaches into isolation stations, or developing a vaccine for the pandemic. और यहाँ मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे हमारे देश ने इस क्राइसिस में एक छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। हमारा देश जो PPE इंपोर्ट करता था, सिर्फ 6 महीनों में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और आज नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये दर्शाता है कि डरना नहीं, कुछ करना है। सोच थी कि कैसे आम आदमी के रोजगार और इंडस्ट्री को फिर से ट्रैक पर लाया जाए, और इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए, और कुछ ही महीनों में हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी आज
वापस ट्रैक पर आ गई है. Today, the whole world is looking at India as an investment destination for a global supply chain. Friends, today we also have amongst us another towering personality, not just of India, but globally, Shri Ratan Tata. It is a great privilege for ASSOCHAM jury to have chosen him for his extraordinary work, and he is now recognized and awarded by our Honorable Prime Minister. Thank you, sir, for being with us today. And on behalf of ASSOCHAM, I extend my heartiest congratulations to you for your immense contribution to the industry and the nation. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आपने देश का मार्गदर्शन इस मुश्किल समय में किया है, हमें पूरा यकीन है कि आपका जो विजन है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो सपना जल्द ही पूरा होगा. और इस लक्ष्य में एसोचैम से जुड़े 4.5 लाख सदस्य हर कदम पे आपके साथ हैं. Lastly, प्रधानमंत्री जी, आप after almost 75 years of independence, you have given this country a new mantra. आपने जो आत्मनिर्भर भारत की जो दिशा दिखाई है, उसमें एसोचैम आपसे ये वादा करता है कि हम आपको अपना पूरा सहयोग और योगदान देते रहेंगे. आपका जो सपना है भारत को AAA देश बनाने का, AAA मीन्स आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता. इस लक्ष्य को पूरा करने में हम एकजुट काम करते रहेंगे और आपकी लीडरशिप में भारत जल्द ही AAA देश बनेगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you, Mr. Goenka. Adarniya Pradhan Mantri ji, the ASSOCHAM Centenary Award recognizes an Indian corporate that has displayed the highest level of core values and corporate ethics. Such an organization's efforts have led to development of a legacy Indian brand, along with contributions towards nation building. Ladies and gentlemen, this year, this century, we confer the ASSOCHAM Centenary Award to the Tata Group, a name synonymous with enduring values, excellence, integrity, responsibility. Through the years, the Tata Group has pioneered innovations, setting benchmarks in the field of business, not only in India, but globally. With more than 100 years legacy, the Tata Group has formed the backbone of India's growth story. We at ASSOCHAM recognize this spirit of nation building that continues to guide the Tata Group. May I now request the Honorable Prime Minister to present the ASSOCHAM Centenary Award virtually to Mr. Ratan Tata by pressing the remote. Thank you very much for the honors, Honorable Prime Minister, and very, very many congratulations to Mr. Ratan Tata and the entire Tata family that live and work across the globe. I'm sure this is a proud moment for all. With this, I would now invite Mr. Ratan Tata to share his thoughts with us. Mr. Tata. Good morning, first of all. Let me express my deep appreciation for our Honorable Prime Minister sparing his time to be at this function with us this morning. In all the years that I have been in business, I have valued and been respectful of what our Prime Minister has been wanting to do, the leadership he has given us through what has been probably the worst year
that this planet has ever seen, either the pandemic, the previous drop in economic levels, and other calamities that have come. Sir, you have been the carrier of leadership. You have not dithered, you have not escaped, you have turned and frontally led the country through this difficult period, for which I would say that we should all be most obliged. Yes, there will be periods of discontent, there will be opposition that will raise the head, but there has never been any dithering or any chance running away from. If you want a lockdown, you got a lockdown. You showed the country as one that responded to shutting off all power and lights for a few minutes. You made that happen. It's not cosmetic. It's not showmanship. It has put the country together, showing that we can stand up and marshal our efforts to do what you have set ourselves to do. It is now our job as industry to follow this, to show the benefits of this leadership, which I am quite confident we will do. As I have seen India in the last few years, we do tremendous things when we unite ourselves together to do them and don't dissipate our efforts in conflict. Today, I want to again just thank the Prime Minister for being with us today and giving me the of receiving this award from his hand. But more than anything else, to thank you, sir, for leading the country through this difficult period. I think if we all stand together and follow what you have said, what you have done, what you have shown, we will have a situation where the world will look at us and say, this Prime Minister said it could happen, and he made it happen. Sir, thank you again. It's a great honor for me. And I've not been as articulate as you have always been, but take it from an amateur that appreciate what you've done. Thank you, sir. And good fortune to you and to India in the coming period. Thank you, sir. दीपक वॉल्यूम बंद है आपका The coronavirus is to have plunged the world into a crisis like no other. Amidst this crisis, India has found a silver lining of hope. This hope emerges from the vision shown to us by the Honorable Prime Minister of making India the Atmanirbhar Bharat of our dreams.
Sir, on behalf of ASSOCHAM and all its members present, I once again welcome you and may I request you to address all of us, the Indian industry and the global industry. Thank you so much, sir. नमस्कार जी। एसोचैम के अध्यक्ष श्रीमान निरंजन हीरानंदानी जी, इस देश के वरिष्ठ उद्योग जगत के प्रेरणा पुरुष श्रीमान रतन टाटा जी, देश के उद्योग जगत को लीडरशिप देने वाले सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, हमारे यहां कहा जाता है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विषेद शतम सबः, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। साथियों, बीते 100 सालों में आप आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास की यात्रा के हर उतार चढ़ाव में भागीदार रहे हैं। एसोचैम की स्थापना के पहले 27 साल गुलामी के कालखंड में बीते हैं। उस समय देश की आजादी ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। उस समय आपके सपनों की उड़ान बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब एसोचैम के जीवन में जो अगले 27 साल आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 वर्ष के बाद, आफ्टर 27 ईयर्स, 2047 में देश अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा। आपके पास बेड़ियां नहीं, आसमान छूने की पूरी आजादी है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना है। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। साथियों, आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं।
ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। ये पॉजिटिविटी आई है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के अभूतपूर्व आत्मविश्वास से। अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, हर सेक्टर के लिए सरकार की नीति क्या है, रणनीति क्या है, पहले और अभी में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर बीते सेशन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था, वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है, वाई नॉट इंडिया। अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो वाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो वाई नॉट इंडिया। पहले रेगुलेशंस और रूल्स का जाल था, तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे, वाई इंडिया। आज वही कह रहे हैं कि लेबर लॉ में ईज ऑफ कॉम्प्लायंस है तो वाई नॉट इंडिया। पहले सवाल होता था कि इतना रेड टेप है तो वाई इंडिया। अब वही लोग जब रेड कारपेट बिछा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, वाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत होती थी कि इनोवेशन का कल्चर उतना नहीं है तो वाई इंडिया। आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत देकर दुनिया विश्वास से कह रही है, वाई नॉट इंडिया। पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो वाई इंडिया। आज जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर भरोसा किया जा रहा है, विदेशी निवेशकों को एनकरेज किया जा रहा है, तो वही लोग पूछ रहे हैं, वाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत थी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में काम संभव नहीं, तो वाई इंडिया। आज जब इतना आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम हमारे यहां है, तो सेंटिमेंट है, वाई नॉट इंडिया। साथियों, नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। पहली बार 10 से ज्यादा सेक्टर्स को एफिशिएंसी
और प्रोडक्टिविटी आधारित इंसेंटिव के दायरे में लाया गया है। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं और लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए चल रहे सब प्रयास भी इंडस्ट्री के लिए रिवॉर्ड ही है। हमारे लाखों एमएसएमईज के लिए चाहे उसकी परिभाषा को बदलना हो, क्राइटेरिया में बदल लाना हो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रायोरिटी हो या फिर लिक्विडिटी से जुड़ी समस्याओं का हल करना हो, ये भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन ही है। साथियों, देश आज करोड़ों युवाओं को अवसर देने वाले एंटरप्राइज और वेल्थ क्रिएटर के साथ है। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को, आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा। जो बदलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं, वही बदलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे। जितनी लिबर्टी, जितना इंक्लूजन, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सरकार से, सोसाइटी से चाहते हैं, उतना ही इंडस्ट्री के भीतर विमेन के लिए, युवा टैलेंट के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है। हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग तक दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द अपनाना होगा। प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही हमें उसे पर्पज ओरिएंटेड भी बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। साथियों, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन का बेहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये शेयर बढ़िया है, ये सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। R&D पर होने वाला निवेश। भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर
70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा आईटी, फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। साथियों, आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तेजी से रिएक्ट करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा, इसके लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना जरूरी है। इसमें आप विदेश मंत्रालय की भी मदद ले सकते हैं। कोविड से इस संकट काल में हमने देखा है कि विदेश मंत्रालय के पूरे नेटवर्क का बेहतर उपयोग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचैम जैसे इंडस्ट्री के संगठनों के बीच बेहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से रिएक्ट करने के लिए, तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मैकेनिज्म बेहतर कैसे हो, इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। साथियों, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने यह कर दिखाया है। कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाइयां पहुंचाई है। अब वैक्सीन के मामले में भी भारत अपनी जरूरतें तो पूरी करेगा ही, दुनिया के अनेक देशों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। साथियों, रूरल और अर्बन डिवाइड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार बीते 6 सालों से कर रही है, इंडस्ट्री उन प्रयासों को मल्टीप्लाई कर सकती है। एसोचैम के मेंबर्स हमारे गांव के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टडी आ गई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है, ये बहुत प्रोटीन रिच है, तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में, हमारे टेबल पे, हमारी थाली में किस प्रकार से विदेशी चीजें घुस जाती है। हमारे यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है, और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले,
बेहतर मार्केट मिले तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एवेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियायत दी जा रही है। रीट्स और इन्वेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। साथियों, जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना, ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। एसोचैम के आप सभी साथियों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और एसोचैम नई ऊंचाइयों को पार करे और 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर, उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। आपको जब जब सुनता हूं और मोटिवेट हो जाता हूं। We receive new ideas from you and we assure you for the complete support and commitment of ASSOCHAM at all levels. May I now invite incoming President Vineet Agarwal to share his thoughts. Over to you, Vineet. Honorable Shri Prime Minister Ji, Pranam. I would like to thank you on the behalf of the 4.5 lakh ASSOCHAM members for gracing us with your presence today. Sir, I have seen how your vision can bring people together. I witnessed firsthand how we at ASSOCHAM responded with josh since the time you addressed us last year. Even in these times of a pandemic, it is your vision and guidance that has given all of us the confidence that we can achieve our dreams. As our country progresses on the journey towards becoming a $5 trillion economy, ASSOCHAM is committed in supporting all initiatives towards nation building. Your call to create an Atmanirbhar Bharat, a new India, the India of the future, which will be self-reliant and integrated as a crucial hub in global value chains. Atmanirbhar Bharat would mean that our country's supply chains and logistics
is efficient, productive, and world class. Sir, as I come from this specific industry, I assure you that we will build capacity and awareness towards achieving this goal. As an apex chamber, we would continue to focus on strengthening the backbone of our economy, the MSME segment. ASSOCHAM has extensive experience at the grassroots level, which we would leverage to champion the cause of MSMEs so that they continue to prosper. As the incoming president, I will take forward the mandate that you've set for the industry and continue the legacy that ASSOCHAM has built. We started our 100th year with you, sir, and today we begin the next phase of our journey with your guidance. Sir, as I close, I draw inspiration from what you said some time back. हम साथ चले, मिलकर चले, मिलकर सोचे, मिलकर संकल्प करें और मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. With these words, I would like to thank you for addressing us today. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी.